जय श्री राम। राधे राधे भाई साहब। आपकी तबीयत सही नहीं है, आँख में क्या हो गया बता रहे थे वहाँ। सर आप वीडियो कितने दिन में डालते हैं? मैं देखती रहती हूँ, पुरानी पुरानी रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। कल मैंने देखा था एक वीडियो डली थी, बहुत पता नहीं कितने दिन में डली थी, मतलब हफ्ता हफ्ता में शायद आप डालते हैं। पत्नी के घुटनों का ऑपरेशन कराया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वही समझ नहीं पाई। वो लोग वहाँ शशि के यहाँ आप थे ना, तो कह रहे थे, वही हमने सोचा आपका। शिवांगी बहन राम राम। राम राम बहन, राम राम। आज आपकी वीडियो देख नहीं पाई हूँ अभी देखूंगी। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए 1 महीने से घर से बाहर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तभी वीडियो कम आ रहे थे। कल हमने देखा था 12वीं क्लास का कुछ वो था, समझा रहे थे आप, तो वही देखी थी पूरा। कैसी हो दीदी जी? मैं तो ठीक हूँ बहन। घर गई थी, वहाँ से आकर के थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं डाल तो देती थी, लेकिन देख नहीं पाती थी किसी का। लाइव भी देखो, 3-4 दिन से मैं नहीं आ रही हूँ। क्या 8-10 दिन से, 10-15 दिन से लगातार नहीं आ रही हूँ। थोड़ी सी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए नहीं करती थी। और शिवांगी, आपका खाना पीना हो गया बहन? खाना हो गया दीदी। तो साथ ही खेती का काम भी चल रहा था। हाँ सर, खेती का काम तो देखो गांव में चलता ही है। हम भी गए थे घर, पहले भी गई थी, 1 महीना रह के आई, उसके बाद अब फिर गई थी। अब गर्मी भी बहुत हो रही थी। खेती बाड़ी है तो काम तो होता ही है। खेतों के चक्कर में हम भी घर गए थे। और शिवांगी कैसे हो बहन?
آپ کی آنکھوں کا کیا ہوا ہے؟ ہمارا آنکھوں کا ہمارا 2013 میں آپریشن ہوا تھا، تب سے آنکھوں میں تھوڑا سے ہو جاتا ہے، ایسے ریت جیسے گڑنے لگتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کو دکھاتی ہے تو انہوں نے بولے کہ جب دھول مٹی جاتی ہے تو اسی سے پرابلم ہوتی ہے۔ میرا چشمہ بھی ہے لگا ہوا ہے، مطلب پاور کا ہے، اور زیادہ گرمی میں زیادہ جیسے لگا لیتی ہوں تو پتہ نہیں آنکھوں میں پسینہ چلا جاتا ہے، اس سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ دکھا کے آئی ہوں، کہہ رہے چشمہ تھوڑا چینج کرانا ہے۔ آپریشن آنکھ کا نہیں ہوا تھا، گال بلیڈر نکل گیا، تب سے مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے۔ کھانا پینا سر کھا نہیں پاتی ہوں، تیل وول والا کھانا کبھی نہیں کھاتی ہوں۔ اور جہاں تھوڑا سے گئی گاؤں میں گئی، شادیاں وادیاں پڑی تھی، لوگ نہیں مانتے، اب کھا لیے وہی پرابلم ہو گئی مجھے۔ یہاں اپنے رول ریلیشن سے رہتی ہوں، یہاں نہیں کھاتی ایسا کوئی چیز۔ ایسا لال ہو گئی تھی، ایسے ہو گیا تھا جیسے بلڈ آنکھوں میں آ گیا ہے، جم گیا، ایسے ہو گیا تھا۔ پھر دوا لے آئی دکھا کے تو اب صحیح ہے۔ اس لیے لائف بھی نہیں کر رہی تھی، 10-15 دن سے بیچ بیچ میں کبھی کر لے، نہیں کرتی تھی۔ شیوانگی بہن لائک کر دینا اگر نہیں کیے ہوں گے تو، ایک لائک ہے بس۔ زیادہ فون دیکھنے سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے؟ ہاں سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے ایک دم نیم اپنا لیا ہے، ویڈیو ڈال کے بغل مجھے نہیں کرنا ہے یہ سب دیکھنا زیادہ۔ سمجھ گئی میں، اسی فون کے چکر سے زیادہ ہوا ہے، اس لیے اب کم دیکھتی ہوں۔ بس جیسے ویڈیو کسی کا آیا سامنے، نکال کے لگا کے اپنا کام کرتی رہتی ہوں، بیٹھی ہوں دور، فون کے چکر میں کمنٹ کر کے چھوڑ دیتی ہوں، نہیں دیکھتی۔ کبھی کبھی مجھے بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہاں ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، مجھے لگ رہا ہے نا، مجھے خود پرابلم اسی فون سے ہی لگ رہا ہے۔ اور شیوانگی بہن آپ چلی گئیں کیا؟ گڈ نائٹ دیدی آدتیہ سنگھ۔ گڈ نائٹ بہن، آپ کیسے ہیں؟ گڈ نائٹ، ہم نے لائک کر دیا۔ اچھا، ابھی آیا تو نہیں ہے، آ جائے گا بعد میں، ابھی تو ایک ہی لائک ہے، آ جائے گا بعد میں۔ ہاں آ گیا۔ سنتا ہوں، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، آپ کی ویڈیو پوری سنتا ہوں۔ ہاں بھائی صاحب، ہم آپ کی بھی جتنے لوگ پڑھانے والے جٹے ہیں، ہمارے ہسبینڈ خود وہ کرتے ہیں نا، میں ایسے نہیں کرتی ہوں، میں لگا کے رکھ لیتی ہوں، کچھ کرتی رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں، بس نگاہ نہیں ڈالتی ہوں، ویڈیو دیکھتی ہوں۔ میرا اپنا خود کا نیم ہے، جتنا دیکھتی ہوں پورا دیکھتی ہوں۔ اب سب کا تو اتنے لوگ ہیں، سب کا روز نہیں دیکھ پاؤں گی، روز دیکھوں گے تو پھر اس کو دیکھنے سے کیا فائدہ آدھا تھوڑا۔ نمستے آنٹی جی، نمستے بیٹا، نمستے، کیسے ہیں رادھے श्याम؟ فون سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی نہیں ہوتا تھا، کندھوں میں درد ہونے لگتا ہے، اس لیے چھوڑ دیا، نہیں زیادہ وہ کرتی۔ یہ صحیح طریقہ ہے، ہاں سر یہی کرتی ہوں،
लगा के छोड़ देती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, जब बंद होता आके कमेंट कर देती हूँ, तो पूरी वीडियो सबकी हो जाती है। आधा अधूरा हमें नहीं अच्छा लगता है। आप बैठे रहोगे तो जी उगेगा, चलो छोड़ो, ऐसे लोग करते हैं, थोड़ा देख लिए फिर बगल कर दिए, ऐसे नहीं करती हूँ। हम तो अच्छे हैं आंटी जी, आप बताइए कैसे हो? खाना हुआ आपका? हाँ, खाना हमारे यहाँ खाना जल्दी हो जाता है, 8 बजे हमारे यहाँ खाना खा लेते हैं, एकदम टाइम फिक्स है खाने की। खाना पीना खा के किचन विचन फ्रेश करके तब बैठती हूँ। और घुटने में क्या हुआ था सर जी? बहन जी के घुटने में क्या हुआ था? घुटने में तो हमारे भी प्रॉब्लम है, दाहिने पैर में बहुत ज़्यादा है। इतना करती रहती हूँ, दवा तो बहुत कर लिया, लेकिन दवा से कोई आराम नहीं मिल रहा। बस वो मालिश वालिश करना, तेल वेल लगा लेना, यही करना, उससे थोड़ा से कुछ है। बाकी अल्ट्रासाउंड हर चीज़ में इसका एक्सरा उक्सरा सब करा लिया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम निकली है। मैं आन हूँ, खाना खाने लगा हूँ। हाँ हाँ सर जी, आप ठीक हैं। राधे राधे दीदी, राधे राधे। अनीता कैसे हो? अनीता मैं आधा पूरा वीडियो गया नहीं है, पता नहीं क्यों, ज़्यादा बन जाता है तो नहीं जा पाता है ऐसे। मैं उसको आधा करके फिर करूँगी। और अनीता खाना बन गया? अच्छा, हाँ आधा गया है बस, अभी तो जितना गया उतना है। इस फ़ोन में पूरा मेरे में नहीं जा पाता, पता नहीं क्यों। ज़्यादा थोड़ा 5 4 साढ़े 4 5 मिनट का बन जाता है तो नहीं जाता पूरा। खाना हो गया आपका? हाँ, हमारा तो खाना हो गया। आज हमने कहा थोड़ा सा कर लेती हूँ, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन कर लिया। और भैया तो आ गए होंगे ना, तभी तो खाना हुआ। 9:30 तो हो रहे हैं। राधे राधे श्याम भैया, राधे राधे। राधे श्याम भैया, राधे राधे। जय श्री राम। अभी मेरा नहीं हुआ दीदी। अच्छा अच्छा, बच्चे खा लिए होंगे, आप नहीं खाए? मैं भी खा लिए, आपके भाई साहब भी खा लिए, और बेटा तो गया दीदी के यहाँ खाने। हर हर महादेव। मैं थोड़ा 5 बजे कुछ खा ली थी तो भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी। बाकी किचन विचन तो सब कर लेती हूँ, अपना उठा के रख दी। बीमार रहते हैं तो वो खाते हैं तो क्या, नानी खाओ नानी खाओ, उनके चक्कर में कुछ खा लेती हूँ 5 बजे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और भैया नहीं आए अभी? अनीता, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। संतोषी माता का गाना है, मैं रोज़ सोचती हूँ शुक्रवार को बनाऊँ, बृहस्पतिवार को बनाऊँ, शुक्र को डालूँ, भूल जाती हूँ। अब आ गए, अब आ गई। अच्छा अच्छा, खाना खा लो आप भी।
आ गए। हाँ अनीता आप खा लो, भैया आ गए, अब रहने दो। 5-10 साल से दर्द था, पहले एक घुटने में था, फिर दूसरे घुटने में होने लगा। तो जल्दी से चला जाता है, पढ़ भी नहीं पाई पूरा। होने लगा, बहुत दवाइयाँ खाते रहे, अंत में ऑपरेशन ही कराना पड़ा। तो ऑपरेशन सक्सेस है सर जी? हमें भी प्रॉब्लम है दाहिने पैर में। दवाइयाँ तो खाने में डलते, हमारे पापा जी थे, उनके ऐसे घुटनों में था, इतनी दवाइयाँ खाए, डॉक्टर दर्द की दवाइयाँ दे देते थे, उनके दोनों किडनी खराब हो गई और 2016 में एक्सपायर हो गए। बस दवा खाने से किडनी खराब हो गई, दर्द की गोली खा खा के। जय श्री राम, लाइक डन। हाँ अनुराग भैया, हाँ आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ हमारे यहाँ भी 2 लोग कराए हैं, दोनों पैर का बिल्कुल सक्सेस है, अच्छे हैं, चलते फिरते हैं, सब कुछ है। भैया ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं, चेयर पे बैठते हैं, घुटना मोड़ के नहीं बैठते हैं, बाकी चलना फिरना सब बराबर कर लेते हैं। यहाँ दिल्ली में गुड़गांव में कहाँ है मेदांता, आप जानते होंगे, तो वहीं कराए थे, अच्छे हो गए हैं दोनों लोग, एक लेडीज हैं एक जेंट्स हैं। हम यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं ना, तो यहाँ गुड़गांव में है मेदांता, वहीं कराए थे। ज़्यादा पेन किलर से किडनी खराब होने का डर रहता है। हाँ सर जी, हो गया था पापा के हमारे, बस किडनी खराब हो गई थी, उनको मना करते थे, मैं यहाँ रहती थी, वो घर पर रहते थे, मैं अकेली हूँ, भाई बहन कोई नहीं है, और मम्मी 2005 में एक्सपायर हो गई थी, और यहाँ जब तक रहते थे हमारे साथ, नहीं खाने देती थी, 2-3 महीने के लिए चले जाते थे वहाँ, पेन किलर खा लेते थे, बस एक बार की किडनी खराब हो गई थी। तब से हम डर के मारे खाती नहीं हूँ, मैं होम्योपैथिक का लाती हूँ, होम्योपैथिक का चल रहा है, उससे थोड़ा है आराम। बाकी तो ये रामदेव का तेल होता है एक, पता नहीं ध्यान नहीं है कौन सा है, वही लगाती हूँ, उससे आराम रहता है। दर्द भी सहन नहीं होता, कोई क्या करे। हाँ सर जी, ये बात तो सही है। परेशानी तो होती है।
प्रॉब्लम ये कि आप 40 35 40 क्रॉस कर जाओ, प्रॉब्लम होने लगती है। गांव में गई थी, देखी थी, लोग मतलब बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, लेकिन हाथ पांव से एकदम सही हैं। गांव वतने रहन सहन का भी कुछ होता होगा, खान पीन का भी फर्क पड़ता है। अब हम लोग यहाँ रहते हैं, कहीं न निकलना न बैठना, घूमते टहलते हैं। चलती हूँ 1 घंटा, खाना खाने के बाद आधा घंटा घूमती हूँ। सुबह भी थोड़ा निकलती हूँ, लेकिन अब बच्चे जाने लगते हैं तो सुबह सुबह नहीं टाइम मिलता खाना पीना बनाना। जब दर्द रहता है तो एक्सरसाइज भी नहीं करने का मन करता, होता ही नहीं। मेरी कोशिश रहती है सप्ताह में 2 वीडियो अपलोड हो जाए, पर देरी हो ही जाती है। हाँ, 2 तो होना चाहिए, 1 सप्ताह में 2 होना चाहिए। हमारे हस्बैंड हैं, वो इंश्योरेंस में है, ऐसे बस लोग कहने लगे तो क्लेम के विषय में डालने लगे, बनाने लगे। डालते हैं, कभी तो हफ्ता भी निकल जाता है ऑफिस का काम रहता है, नहीं डाल पाते। कभी हफ्ते में 2 डाल देते हैं। और लॉ भी पढ़ाते हैं तो उसको भी डाल देते हैं। उनका जब मन कहा तो डाले, नहीं तो नहीं। मैं कहा ऐसे नहीं होता है, कम से कम 1 डालो तो 1 ही डालो हफ्ते में, 2 डालो तो 2 डालो। अब ऑफिस का काम रहता है, आके फिर कहते रहे 2 नहीं बनाऊंगा, जबकि ऑफिस बना रखे हैं अपना। ऑफिस से वहाँ से आते हैं, घर पे भी बना रखे हैं दूसरी जगह लेकर के। क्लाइंट आते हैं, लेकिन वीडियो नहीं बना पाते ज़्यादा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्वेता बहन, उनकी वीडियो भी देखी है। अच्छा अच्छा बहुत कम बनाते हैं, बता तो रही हूँ। अब बनाते हैं, कहती हूँ तो हफ्ते में कहती हूँ 2 बना दो। दीदी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। अब कल परसों में बनाए तो शायद डाले थे। जब मन करता है तो डाल देते हैं, नहीं तो नहीं। मैं कहा एक नियम बना लो, लेकिन कहते कुछ नहीं होता है, हम ऐसे ही डालेंगे। फ़ोन मतलब लोग बताते हैं कि आपकी वीडियो देख कर के हम लॉ को क्रॉस कर गए, पास कर लिए। आपने पहले भी बताया था। हाँ हाँ, बताया था। वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ जैसे एक्सीडेंट हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, तो इंश्योरेंस में है ही है। क्लेम नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलता, क्या होना चाहिए, वो सब बताते हैं। क्या करना चाहिए तो मिलता है, मतलब जानकारी नहीं होती है लोगों को। दीदी का हाल बा ठीक है, ठीक ठीक है। दुबे जी नमस्कार। श्वेता दुबे सर जी बोल रहे हैं, योगेश सर जी बोल रहे हैं। दुबे जी नमस्कार। श्वेता आप पहले बोलो, सर जी क्या बोल रहे हैं।
जवाब दो ना। नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं तो आप भी बोलो ना। योगेश भैया जी कैसे हैं? उनको बोलती हूँ मैं, आप वीडियो की देखो सबका, फिर आपका देखेंगे। टाइम नहीं रहता। अब आए हैं, बैठे हैं, अब ऑफिस का काम चालू है, कर रहे हैं। योगेश भैया जी घर परिवार कैसे हैं? पहले कर दिया है उन्होंने। अच्छा अच्छा। अल्लाह पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अल्लाह है या ललम भी हैं। वहाँ दिल्ली में कोर्ट में बैठते हैं कभी कभी। ये गाड़ियों का केस होता है ना, तो सारा सब देखते हैं। भैया नात बात रिश्तेदार सभी लोग कैसे हैं? और श्वेता, खाना पीना हो गया आपका? सब ठीक है? अभी खाना खा रहे हैं। आपकी पढ़ाई देखती हूँ। मैं तो देखती हूँ, मुझे तो समझ में आता है। अभी कल वाला भी पूरा पूरा ही बैठ के वो देखा था सब। पहले पहले के जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं सब। समझाने का एक तरीका होता है। कोई समझाते हैं नहीं समझ में आता है, अब बताते हैं सर जी, बहुत अच्छा लगता है, पूरा समझ में आता है। और श्वेता, खाना खा लिया? आज फ़ोन करने को सोच रही थी आपको श्वेता। अब वो हमारे विवान थे, मैं बताया नहीं कि वो फ़ोन ले लेता है, देता नहीं। करूँगी, कल करूँगी। रिटायर्ड होने के बाद टाइम पास कर रहे हैं? नहीं, अब अच्छा है, बहुत अच्छा है। टाइम पास भी है, अपना नॉलेज भी बराबर बना रहता है ना। हमारे हस्बैंड हैं, वो पढ़ाई से कभी नहीं दूर होते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। अलग पढ़ाई कर रही हूँ भैया जी, वीडियो। बहुत पढ़ते हैं वो। जब देखो, जब उनका एग्ज़ाम ही हो रहा है। उनके इंश्योरेंस में भी है ना, उसमें भी पढ़ाइयाँ बहुत होती हैं। पढ़ पढ़ के तो आगे जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम होते रहते हैं। रही हूँ, जो भूल गए थे पढ़ना लिखना याद करती हूँ। हाँ, सही बात। दीदी खाना बना रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, खाना बना रही हैं। हमारे यहाँ बहन एकदम पक्का फिक्स है, 8 बजे हमारे यहाँ खाना रेडी। बाय बाय, जाओ खाना बना लो, खा लो। श्वेता, देर से खाना क्यों बनाती हो? देर से आते हैं क्या?
हमारे यहाँ जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे आ जाते हैं, 5 बजे छुट्टी होती है, 5:15 5:30 आ जाते हैं, 6 बजे हमारा बेटा आ जाता है। टाइम मिलेगा तो आऊँगी, संडे को गांव जा रही फिर से। क्यों संडे को फिर से क्यों जा रही हैं, कुछ है क्या? आन हूँ, खाना खा रहा हूँ। हाँ सर जी, आप खाना खा लीजिए। सोता गांव में फिर कुछ है क्या? क्यों जा रही हो बहन? गर्मी बहुत हो रही है, गांव में लाइट बहुत जाती है। नमस्ते दीदी, जय माता दी, राधे राधे, कैसे हो? ठीक हूँ। और किरण, गर्मी बहुत हो रही ना घर पर? घर वाले जीने नहीं देंगे। क्यों नहीं जीने देंगे बहन? किरण, आप योगेश सर से अगर नहीं हो तो जुड़ जाना। अब नाम लेना ही पड़ रहा, बड़े हैं, मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी मैं इसमें बोलूँ कैसे? किरण, खाना पीना हो गया? पूछो मत दीदी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ बहन, बहुत गर्मी है, इसीलिए मैं भाग आई। अगर आप आती मेरे पास तो मैं एक आध दिन और इंतज़ार करती। मैं टिकट एक दिन पीछे लेती, तत्काल में ही तो कराना था। अब आपने जब वो बता दिया पड़ोस में, तो फिर हमने कहा उसी दिन हमने लिया था तत्काल में। क्या उनके क्या हुआ किरण? बेटी अकेले ही है, कैसे करेंगी बेचारी? फ़ोन पे पूछूंगी किसी दिन आपसे, अब ऐसे इसमें नहीं पूछूंगी। आज की दावत हो गई अच्छी आपकी? किसी की वीडियो पर ना जाऊं तो नाराज मत होना। नहीं बहन, क्यों नाराज होंगे आप बताओ? अब हम ही हैं, भाई नहीं जा पाती हूँ, अब क्या करूँ? अब रोज़ रोज़ अगर मतलब टाइम नहीं है, किसी के देखो तो मन से पूरा देख ले, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, आधा अधूरा नहीं देखना चाहिए। और परिवार के लोग हैं? दादा दादी हैं? अच्छा अच्छा, बाप रे। उस दिन आपने बताया, मैं पूरे दिन बेचैन सी थी, मैं कहा बताओ ऐसा हो गया। श्वेता बहन, ऐसा नहीं समझना, हम वीडियो तो एक के बजाय 3-3 देख लेती हूँ। मेरे थोड़ा फ़ोन देखने से आँखों में फिर से प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा। इसलिए देखो लाइव भी नहीं आ रही हूँ ज़्यादा। हाँ दीदी, 1 घंटा पहले दावत खाकर आ गए घर पर। अच्छा अच्छा, ससुराल में परेशानी होती है, लड़ाई झगड़ा में दिमाग खराब होता है। हाँ ये बात तो है बहन, सही बात है। जिनके यहाँ अगर वो बटाई जो कुछ है, कोई प्रॉब्लम है तो होता ही है। हमारे यहाँ तो झूठ नहीं बोलना है, हम 4 हैं, हम एक घर पे रहते हैं, हम 3 लोग बाहर रहते हैं, तो हम ही सबसे बड़ी हूँ। हमारे यहाँ कोई बंटवारा वटवारा कोई टेंशन नहीं है बहन। तो हम घर भी जाके, हमारी माता जी हैं, हम बड़े प्यार से रह लेते हैं। अब आप अकेले हो, प्रॉब्लम होती है। अब मैं इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। हाँ, अगर घर में बड़ा बुजुर्ग आदमी है तो ठीक रहता है, नहीं है तो छोटे छोटे बड़े परेशान करते हैं फिर।
छोटे बड़े कोई भी हैं जिनके समझदारी नहीं है तो परेशान ही करते हैं। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, जब जिसका समय मिलेगा तब वीडियो देखेगा, नहीं समय मिलेगा तो नहीं देखेगा, इसमें नाराज़गी वाली कोई बात। हाँ किरण, आपको मैं बताऊं सही बात, हम कितने लोगों के, हम चाहे कोई सुन ही रहा हो आड़ में, एलबी जाती थी 1-1 घंटा रहती थी। अब मैं बता रही हूँ, मैं जब से घर गई, आपको पता है घर जाने पर आदमी शादी विवाह हर जगह आ रहा जा रहा, वैसे भी मेहमान आ जाते हैं। आप देखियो मेरे यहाँ काम लगा रहता है बहन, जब जाती हूँ नहीं देख पाती हूँ लोग हमारे तब से वैसे बहुत। तो हमारी ना लाइव में देखो कितने लोग आते थे, आप देखो किरण, सब ने बंद कर दिया। मैं तो इसके लिए बिल्कुल वो नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। चाहे भाई कोई आए चाहे ना आए, जो आएगा जो करेगा हम भी जाएंगे। फुर्सत रहूँगी तभी तो ना। अब देखो घर पे जाके आप ही देख लो, घर पे हो कितना काम रहता है। अब वही है कि जाके छू छू के भाग आए तो अलग बात है, उससे वो होता नहीं है हमसे। जो सही आदमी है वो नहीं कर पाएगा इस तरीके। नहीं आते लाइव में, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो खुद करती भी नहीं हूँ, इसी के लिए कि थोड़ी जीना मरना है। अब आँख है, आँख में प्रॉब्लम हो गई है, तो ज़्यादा फ़ोन देखने से भी प्रॉब्लम होती है मुझे। मैं चश्मा लगाती हूँ, हमारा वो चश्मा मतलब पावर का है, ऐसे नहीं है कि शौक बस नहीं लगाती हूँ। ज़्यादातर इसी में आँख गड़ाए रहती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। पहले भी 1 महीना पहले हो गया था, आँखों में ब्लड आ गया था, मेरे लाल हो गई थी बिल्कुल। इसमें कोई बिगड़ने की इसमें कोई बात ही नहीं होती है, बिगड़ना नहीं चाहिए। आपने सही लिखा था, गलत नहीं लिखा था। जिसके लाइव में जाओ वो आपकी वीडियो देखेगा, ना जाओ तो लाइव में नहीं आएंगे भैया। इससे अच्छा तो किरण आप बनाओ ही मत ना, सबसे बढ़िया है, बाद में बना लेना। अभी देखो सबके आप जा रही हो, अगर आप बना लो ना फिर पता चल जाएगा। मैं तो चाहे कोई सुन ही रहा हो, मैं इसके लिए मुझे नो टेंशन। मैंने देख लिया, मैं 12-12 बजे तक पागलों की तरीके लगी रहती थी, क्योंकि वाईफाई रहता था, बंद होता नहीं। यहाँ हमारे लेट सोते हैं तो मैं भी जागती रहती थी, मैं कहती चलो चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम। दीदी भाग दौड़ करने से परेशानी अपनी होती है, वीडियो डालने जाएंगे उसको देखना है, देखे नहीं देखना है तो मत देखिए, पर किसी को सामने से यह मत कहें कि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा। लगता हाँ लिख भाई सर जी का चला गया, मैं पढ़ नहीं पाई। लोग लिख लिख के देते हैं, लिखते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मान लो किसी को कोई परिवार प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम हो गई, घर में प्रॉब्लम हो गई, किसी को हो गई, तो आदमी इसी से थोड़ी होगा। मैं बात एकदम साफ बोलती हूँ, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मुझे कोई वो नहीं है इसका। भाई अपना शरीर है, सब है, आदमी 24 घंटा इसी फ़ोन में थोड़ी लगा रहेगा।
2 दिन 4 दिन में देख लो बहुत है। अब इतने लोग जुड़े हैं, अब आप बताओ क्या सबको एक दिन में देख लेंगे? वही टच करके भागना, ये सब गलत बात है। हम ये नहीं सीखे हैं। अब मुझे कोई ये भी नहीं रहता कि हमारे लाइफ में किसी को जबर नहीं। भाई जिसको समय है तो आए, नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी, मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। हम थोड़ी सबके हमेशा जा पाती हूँ। ये सब प्यार मोहब्बत के वो हैं ऐसे सबको देखा जाता है, ऐसे नहीं होता। बताते रहे हमारे हस्बैंड है, वो डाल देते हैं बस। वो उनको ना उनके पे कमेंट भी नहीं आता, ना वो किसी को करते हैं, ना वो करते हैं, बस डाल देते। अब टाइम नहीं है उनके पास ना, ऑफिस जाते हैं, फिर घर पे आकर काम करना है, तो कहते मेरे बस की नहीं है, डाल देता हूँ। कह रहे हमारे जो बच्चे हैं, जो जूनियर हैं हमसे, वो पढ़ पढ़ के वही अपना एग्ज़ाम देते हैं, देखते हैं। लगता है सभी चले गए हैं, डॉलर मिलने दूर रहे, जीवन में सहजाता रहनी चाहिए। हाँ भाई, सही बात है सर जी, आप सही कह रहे हैं। ये तो फिर ऐसे थोड़ी है। अपना देखो, अपना शरीर है, अपना सब कुछ है। जब आप अपने आप में ही नहीं फिट रहेंगे तो इसको लेके क्या करेंगे? ये तो मैं तो यूट्यूब के बारे में जानती भी नहीं थी। ऐसे एक दिन बैठी थी तो बच्चे थे, मैंने कहा कि मेरे दिमाग में हमेशा पता नहीं पापा मम्मी गूंजते रहते थे, हमेशा मैं परेशान रहती थी। तो एक दिन हमने कहा चलो हमारा कुछ बना दो। जब बना दिए, अपना इसी में थोड़ा सा मन बहल जाता है, मैं इसलिए करने लगी थी। नहीं, मुझे कोई वो नहीं है, अपना थोड़ा टाइम पास इधर उधर जाने से बढ़िया है अपना, अच्छा है। डालने को तो मैं बहुत चीज़ का डाल सकती हूँ, पढ़ाने का भी डाल सकती हूँ, हर चीज़ डाल सकती हूँ। लेकिन मैंने कहा 2-2 मिनट का होता, 3-3 ये बना करके डाल दो, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा मन चेंज हो जाता है, अपना टाइम पास हो जाता है। मम्मी पापा है नहीं, वो मैं अकेले हूँ, मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब होता है कभी कभी पापा मम्मी को सोच के। और पापा हमारे संगीत गाते थे तो उनकी बुकें पढ़ी हैं, तो वही उनकी याद में मैं ये यूट्यूब पे डालने लगी। वो बहुत अच्छा वो करते थे, जॉब भी करते थे, उनको संगीत का बहुत शौक था, वो गाते भी थे। पहले पहले के जो भजन वजन डाली हूँ बहुत, सब उन्हीं के लिखी हुई है, पापा जी के हमारे। अफसर अधिकारी होते हुए भी उनको बहुत शौक था। और भाई आप सर जी, आप खाना पीना खा लिए हैं? आपको टाइम खाना पीना खाने के बाद लेटने को होगा, आप वो कर देना। माता पिता की यादें भूलती नहीं है सर जी, नहीं भूलती है। मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं भावुक हो जाती हूँ। मैं भूल नहीं पाई। तो मैं अकेली हूँ ना, मेरे कोई भाई है ना बहन है, मैं बिल्कुल अकेले हूँ। तो घर भी की सारी जिम्मेदारी है, घर पर भी सारे खेत वेत सब बटाई उटाई पर दे करके चली आती हूँ। घर घर बन रहा था, थोड़ा किराए उराए पे उठ जाता है, तो सिटी के पास में है इलाहाबाद में, तो हमने कहा वही बनवाने के लिए चली जाती हूँ। टाइम नहीं मिलता है। वहाँ जाके जब ताला खोलो तो अजीब सा लगता है, इसलिए रेंट पे चढ़ा दिए हैं, रहते हैं लोग। जाती हूँ तो खुला खुलान मिलता है। तो मम्मी हमारे बहुत कम एज में, मैं ऐसे थी 32 की थी शायद, 32-33 साल की थी जब भी मम्मी चली गई थी। अब पापा थे, अब पापा भी चले गए तो थोड़ा सा बहुत ख़राब लगता है।
जबकि बच्चे बड़े बड़े हो गए, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन माँ बाप तो कभी नहीं भूलेंगे। सही कहा है। हाँ सर जी, सही है। दिन दिन में भी हमेशा यादें रहती हैं, लेकिन अब क्या करें। अब बेटी का, हमारा बेटा है, वो रहता है हमारे पास, उससे हमारा मन लग जाता है। उसको स्कूल छोड़ना है, बेटी छोड़ देती है, फिर हम जाते हैं ले आते हैं। अब तो स्कूल खैर बंद हो गया है, वो क्लिनिक जाती है तो छोड़ जाती है। सुबह अभी गई 8 बजे गया, लेकर के गई हो। उससे अब मन थोड़ा खुश रहता है। और किरण, बच्चे सो गए, जग रहे हैं? ये किरण बहन है, हम है। हमारा इनका घर बस ऐसे 4-6 किलोमीटर के दूर में है, गांव में है, वहीं प्रयागराज में। 6-7 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा नहीं है। हमारी माता जी का भी 20 साल पहले निधन हो गया था। हाँ, तो लोग, कितने लोग हैं बहुत जिंदा रहते हैं। हमारे मौसा जी 80 के आसपास के होने वाले हैं। उनकी माँ 112 साल की हो गई, और वो अपने आप चलना फिरना, लैट्रिन बाथरूम सब जाती हैं। उनके मतलब सामने बेटे और बहू, मतलब दामाद जमाई, बेटी ख़त्म हो गई बेचारी, क्या करें। उनकी नहीं मृत्यु हो रही है, 112 साल की हो गई हैं। हम उनके सामने के पैदा, हमारे पापा उपा सब चले गए। ग्यारह साल और अभी चलते फिरते। हाँ 112 साल की, बिल्कुल चलती फिरती। कुल की हड्डी टूट गई थी, अभी 1 साल हो गया, 1.5 साल। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन नहीं करूँगा, नहीं चल पाएंगी। उन्होंने कहा हमारा कर दो, हम सही हो जाएंगे। और उन्होंने कर दिया ऑपरेशन। उनके कहने पे एकदम फिट हैं, सही हो गई। लेकिन 1 लीटर दूध पीती हैं सुबह शाम में। भैंस का ताज़ा दूध 1 लीटर पीती हैं, खाना पीने सब अच्छे से खाती हैं। न किसी को उठाना पड़ता है, न बैठाना, कुछ नहीं। आयुषजनक है, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो तीन तीन चार पीढ़ियाँ तो देख चुकी। 85 साल की तो उनकी सबसे बड़ी बेटी हो गई है। तब के बच्चे भी हैं, 6 बेटी 3 बेटा, सब बूढ़े हो गए।
हमारे पिताजी भी 85 वर्ष के हैं और अभी छोटे मोटे काम भी करते रहते हैं। हाँ, अब सब लोग चले गए, आप अकेले हैं। अब मैं भी बंद करती हूँ। आप क्या अकेले हैं, परेशान हो गए। आप खाना पीना खाए हैं, आप भी सोइए। एक फ़ोन भी आया था, उनसे बात कर लेती हूँ।